Good afternoon, everyone. Myself is Farman Ali, botany faculty at Digital Genesis platform. Now we are starting a new chapter, that is morphology of flowering plants. Let's start. First of all, we will understand what is morphology. Morphology consists of two terms, morpho and logy. Morpho is simply stand for external features. Logy stand for study. मॉर्फोलॉजी, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल फीचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड morphology. तो morpho is stand for the external features, logy is stand for the study. So morphology is the external features of any organism. We are dealing with the botany, so we will discuss the morphological features of plant. You can note down it, you can take the screenshot. Now we will discuss some important terms like flowers. चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे, फ्लावर्स. किसी भी प्लांट के अंदर कोई भी रिप्रोडक्टिव यूनिट हमारे पास फ्लावर होती है. फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन फ्लावर, इन प्लांट. फ्लावर इज द reproductive unit in plants. Now the question is that what is flower? Flower हमारे पास highly condensed shoot. Flower is highly condensed modified shoot. Flower is highly condensed modified shoot. Third point we can remember, study of flower is called anthology. Study of flower is called anthology. And the largest flower, next point is the Rafflesia. Largest flower is Rafflesia. Similarly, smallest flower is Wolffia. Please everyone note it and take a screenshot. Okay, let's move. Now we will deal with the structure of flower. In a typical flower there are only 4 parts. Let's discuss
This is our typical flower. The first part is known as gynoecium. Gynoecium represents the female reproductive part and the symbolic representation of the gynoecium is G. Now the unit of the gynoecium is called pistil or carpel. Second male reproductive part is called, these represent the male reproductive part, and we can also write the symbol for this. This represents the female flower. And the second part is known as the androecium. It is represented by the symbol A, and this is also for the male one. And the unit of the androecium is stamens. And the third one is known as the corolla. This represents the colorful part of a flower. You see many different types of the flower, they are colorful. It is due to the presence of the corolla. Corolla is represented by the symbol C, and the unit of the corolla is petals. In most of the cases, these petals are colorful, which are helpful for the pollination. And the fourth one is known as the calyx. The symbolic representation of the calyx is K, and the unit of the calyx is called sepals. These represent the units. So these are the four parts of any typical flower. Gynoecium, symbolic representation is G, and symbol is, this is also represent the gynoecium. इसका यूनिट पिस्टल और कार्पल हो सकता है हमारे पास. सेकंड पार्ट कहलाता है एंड्रोशियम, जिसको हम कैपिटल ए और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये हो सकता है. इसका यूनिट स्टेमन्स होता है. थर्ड पार्ट इज नोन एज द कोरोला विच इज़ द कलरफुल पार्ट इन अ फ्लावर. सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी यूनिट पेटल्स कहलाती है. फोर्थ पार्ट आपके पास कैलिक्स होता है, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट सेपल्स हो सकता है. इसके अलावा जिस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पे फ्लावर प्रेजेंट होता है उसको हम थैलेमस बोलते हैं. Sometime this thalamus is also known as the receptacles. Receptacles. Either it is called thalamus or the receptacles. The stalk of the thalamus is called pedicel. The stalk of the thalamus is called pedicel. This represents the typical diagram of the flower. Please everyone note it and take a screenshot. यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम. अब हम क्या डिस्कस करेंगे, ये जो चार पार्ट्स हमने देखे हैं, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला एंड द कैलिक्स, इनको हम वर्ल्स बोलते हैं. दीज आर कोल्ड वर्ल्स. एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर ये चारों के चारों वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं उसे कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है. एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर कोई भी एक वर्ल्स मिस होता है उसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं. नाउ वी विल डिस्कस सम टर्मिनोलॉजी विच इज एसेंशियल फॉर द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. टर्मिनोलॉजी. The first terminology is known as complete flower. Complete flower is that flower in which four whorls are present. So we can write down a flower in which all four whorls are present.
is called complete flower. Second is known as the incomplete flower. एक ऐसा फ्लावर जिसमें कुछ भी एब्सेंट होता है, आइदर स्टेमन्स, आइदर पिस्टल, आइदर कोरोला, आइदर सेपल्स, उस फ्लावर को आप कंप्लीट फ्लावर बोलोगे। इसमें से कोई भी चीज़ यहाँ पे एब्सेंट हो सकती है। फ्लावर इन विच any wall is absent, any wall is absent called incomplete flower. Please everyone note it. चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट फ्लावर एक ऐसा फ्लावर जिसमें चारों के चारों पार्ट्स या वर्ल्स प्रेजेंट होंगे, उसको आप कंप्लीट फ्लावर बोलोगे। एक ऐसा फ्लावर जिसमें कुछ भी एनी वन इज मिसिंग, इट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी और आती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज नोन एज द बायसेक्सुअल फ्लावर। एक ऐसा फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों मौजूद होती है या दोनों प्रेजेंट होती है, उसको हम बायसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। बाय इज स्टैंड फॉर द टू, सेक्स मैंने स्टैंड फॉर सेक्स पार्ट। फ्लावर इन विच both androecium and gynoecium are present. Is called bisexual flower. Bisexual flower. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें एग्जांपल्स नहीं पढ़ने हैं, बस समझना है कि एक ऐसा फ्लावर इन विच बोथ एंड्रोशियम एज वेल एज द गायनोशियम इज प्रेजेंट, उसको हम बायसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। नेक्स्ट फ्लावर इज नोन एज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक ऐसा फ्लावर इन विच आइदर एंड्रोशियम और आइदर गायनोशियम इज प्रेजेंट, सच टाइप ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर in which either stamens or gynoecium is present is called unisexual flower. अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी पिस्टिलेट फ्लावर, इट कैन बी स्टेमिनेट फ्लावर। एक ऐसा फ्लावर इन विच ओनली पिस्टल्स आर प्रेजेंट, दैट इज ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट, सच फ्लावर इज कॉल्ड एज पिस्टिलेट फ्लावर। यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक द फ्लावर इन विच ओनली पिस्टल्स आर प्रेजेंट। फ्लावर्स इन विच ओनली पिस्टल्स आर प्रेजेंट, it is called pistillate flower. Second one, the flower in which stamens are present is called staminate flower. Flowers in which stamens are present, it is called staminate flower. So it can be of the two types. हो सकता है कि वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है कि वहाँ पे
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, तो एक ऐसा फ्लावर जो पिस्टल्स को कैरी कर रहा है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कैरी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर. ऑन द अदर हैंड, द फ्लावर इन विच ओनली स्टेमन्स आर प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड स्टेमिनेट फ्लावर. नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं हम. मोनोइशियस प्लांट. Monoecious plant. Mostly students are confused in between the four terms unisexual, bisexual, monoecious plant and dioecious plant. Unisexual, bisexual we always use for the flower. They can never be used for the plants. Monoecious and dioecious are always used for the plants. तो मोनो में ना सिंगल, एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों के दोनों रिप्रेजेंट है या दोनों के दोनों प्रेजेंट है, उसको आप क्या बोलोगे? मोनोइशियस प्लांट. ए प्लांट इन विच बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड मोनोइशियस प्लांट. राइट द डेफिनेशन. प्लांट इन विच बोथ मेल and female reproductive part are present, called monoecious plant. The examples of the monoecious plant are cucurbita, second example castor, third example coconut, second category is known as the dioecious plant. Di stand for the two. It means both male or female are present on the two different parts, two different plants. ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन? प्लांट्स in which only one reproductive part is present, only one reproductive part is present, called dioecious plant. For example, date palm, papaya, and the third one is known as the mulberry, etc. These are the examples of dioecious plant. Please everyone note it. आइए आगे मूव करते हैं. अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ हम मूव करेंगे जिसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज. तो हमारे पास कुछ बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है जो आपका काम आसान कर देगी. आपको एग्जांपल्स याद हो जाएंगे जो नीट में डायरेक्टली आते हैं. तो एक टर्म डालिए आप, सिमिट्री. टॉपिक नेम इज सिमिट्री. व्हाट इज मीन बाय द सिमिट्री? कि फ्लावर कैन, हाउ मेनी प्लेन फ्लावर कैन कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, तो उसको हम सिमिट्री बोलते हैं. इन मॉर्फोलॉजी देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ सिमिट्री. द फर्स्ट वन इज नोन एज द एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री.
एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री। सिमिट्री। अब आपको इसको कैसे याद रखना है? इट इज आल्सो कॉल्ड रेडियल सिमिट्री। पहला क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, विच वन इज नोन एज द रेडियल सिमिट्री। तो आपको याद इसको ऐसे रखना है कि एक सिंगर हमारे पास होता है ए आर रहमान, तो ए आर रहमान को आपको याद रखना है तो ए इज स्टैंड फॉर द एक्टिनोमॉर्फिक, आर इज स्टैंड फॉर द रेडियल सिमिट्री। तो एक ऐसा फ्लावर जिसको हम कई वर्टिकल प्लेन से इक्वल हाफ्स में तोड़ सकते हैं, ए फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय मेनी वर्टिकल प्लेन, इट इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री। राइट द डेफिनेशन। flower which can cut into two equal halves by many vertical planes, by many vertical planes called actinomorphic flower। तो हमको इसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं, एग्जाम में आपके एग्जाम्पल्स ही आते हैं एग्जाम में। तो हमारे पास वी हैव अ ट्रिक टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक। वी नो वेरी वेल द ट्रिक क्या है, देखते आइए। ट्रिक हम पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट एंड डी फॉर डॉग। These are the names of example. Write down. A stand for actinomorphic. Actinomorphic. B stand for brassica. हमें पता है कि ब्रेसिकेसी एक फैमिली होती है और ब्रेसिका बायोलॉजिकल नेम है मस्टर्ड का, तो यू कैन आल्सो रिमेंबर दिस बाय मस्टर्ड प्लांट, सरसों बोलते हैं हम इसको। थर्ड वन इज नोन एज द चिली एंड द फोर्थ वन इज नोन एज द दतूरा। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ए फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, बी फॉर ब्रेसिका या मस्टर्ड प्लांट, सी फॉर चिली एंड डी इज स्टैंड फॉर द दतूरा। और इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से भी बताते हैं। This plus in the circle is represent the actinomorphic symmetry. Actino A.R. रहमान, तो actinomorphic symmetry is also known as the radial symmetry। एक ऐसा फ्लावर, सपोज करिए ये आपके पास कोई फ्लावर है, ये इसका कोई सेंटर है, जब आप कोई वर्टिकल लाइन को इससे पास करोगे, अगर ये फ्लावर दो इक्वल पार्ट्स में कट हो रहा है, देन दिस सिमिट्री इज नोन एज द एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री। आप यहाँ से पास कीजिए, यहाँ से पास कीजिए, यहाँ से पास कीजिए, this flower can equally cut into the two equal parts. Such type of the symmetry is known as the actinomorphic symmetry. Actinomorphic symmetry is also known as radial symmetry. And the trick to remember the examples of actinomorphic symmetry is A for apple, B for boy, C for cat, D for dog. A is stand for actinomorphic, B is stand for brassica. Alternate name क्या होता है? Mustard. C is stand for chili and D is stand for the datura. Please note it. तो आइए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो सेकंड सिमिट्री इज नोन एज द जाइगोमॉर्फिक सिमिट्री। It is also known as bilateral symmetry.
हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? हम सभी फ़ोन में नेट यूज़ करते हैं, GB। तो Z इज स्टैंड फॉर द जाइगोमॉर्फिक एंड B इज स्टैंड फॉर द बायलैटरल। तो आपसे पूछा जाए कि जाइगोमॉर्फिक सिमिट्री इज आल्सो नोन एज, तो इट इज आल्सो कॉल्ड बायलैटरल सिमिट्री। तो इसमें क्या होता है? बाय इज स्टैंड फॉर द टू। When a flower can cut into two equal halves by only one vertical plane, it is called zygomorphic symmetry. Write the definition. When a flower can cut into two equal halves, can cut into two equal halves by only one vertical plane, it is called zygomorphic symmetry. And the zygomorphic symmetry can also be represented by the symbol of percentage. It is also represented by the symbol of percentage. Again the examples are very important. तो हम इसकी भी आपको ट्रिक बताएंगे, प्लीज़ आप नोट कीजिए डेफिनेशन को। आइए हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं अपनी ट्रिक्स के द्वारा। आप कभी नहीं भूलोगे ट्रिक्स। देखते हैं क्या ट्रिक है इसकी। पीजी कॉलेज बंद। दिस इज योर ट्रिक टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स ऑफ जाइगोमॉर्फिक। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में जाता था। तो पीजी कॉलेज बंद मतलब क्या है कि पीजी कॉलेज आज बंद है। The trick of remembering the examples of zygomorphic or the bilateral symmetry is PG college बंद। तो what is stand for P? P is stand for pea plant, G is stand for गुलमोहर, C is stand for कैसिया। यहाँ से आपको C डिराइव करना है, कैसिया। एंड बन मैंने बीन, B is stand for बीन। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जाइगोमॉर्फिक सिमिट्री। पीजी कॉलेज बंद, पी स्टैंड फॉर पी प्लांट, जी स्टैंड फॉर गुलमोहर, सी आपको कॉलेज से लेना है तो कैसिया प्लांट, एंड बी फॉर बीन प्लांट। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जाइगोमॉर्फिक सिमिट्री। प्लीज एवरीवन नोट इट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिमिट्री हमारे पास होती है आसिमिट्री। आसिमिट्री एक ऐसा फ्लावर विच कैन नॉट कट इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन। दैट टाइप ऑफ द सिमिट्री इज नोन एज द asymmetry. A flower which can not cut into two equal halves by any vertical plane is called asymmetry. Write the definition. When flowers cannot cut into two equal halves by any vertical plane, called asymmetry. A means absent, called asymmetry. अब इसका एग्जाम्पल्स कैसे याद रखना है? ठीक है, डायग्राम भी हम बना सकते हैं। सपोज करो ये कोई आपके पास फ्लावर है, इज इरेगुलर इन शेप, तो देर इज नो एनी वर्टिकल प्लेन बाय विच वी कैन डिवाइड दिस फ्लावर इनटू two equal halves. So this flower is known as asymmetric flower.
नाउ अगेन द एग्जाम्पल्स ऑफ द एसिमेट्रिक फ्लावर इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो कैसे याद करें? आपने कोई ब्लाइंड आदमी देखा है जो काना होता है एक आँख से, वो कभी एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं देख पाएगा, ठीक है? तो आपको काने से ही याद रखनी है कैना। एग्जाम्पल इज कैना, इट बिलोंग्स टू द कैनेसी फैमिली। बस रिमेंबर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैना। कैना इज कम्स अंडर द एसिमेट्रिक फ्लावर। प्लीज एवरीवन नोट। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑन थैलेमस। टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ position on thalamus। So on the basis of position of thalamus, flowers can divide it into three categories. The first flower is called hypogynous flower। इसको कैसे याद किया जा सकता है? अगेन द एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज थ्री फ्लावर्स। आप इसको कंपेयर करके चलिए कि दो आदमियों में फाइट हो रखी है, तो एक आदमी हमेशा सुपीरियर रहता है और एक आदमी हमेशा हाइपो रहता है। हाइपो मीन्स होता है डाउन, कम हो जाना। तो अगर ये हाइपो है तो दूसरा क्या रह जाएगा? सुपीरियर रह जाएगा। तो इसको हम सुपीरियर ओवरी प्लांट भी बोलते हैं। This is the first question. Hypogynous flower is also known as superior ovary, inferior ovary, half inferior, half superior। अगर एक हाइपो है, एक डाउन है, तो दूसरा क्या होगा? सुपीरियर होगा। तो हाइपोगाइनस फ्लावर इज आल्सो नोन एज सुपीरियर ओवरी प्लांट। देखते हैं इसमें क्या होता है। आपको तीन चीजें इसके अंदर याद करनी है। पहला आपको याद रखना है थैलेमस। दूसरा आपको याद रखना है gynoecium, and the third one is the position of rest of flower part, rest of floral parts। तो हाइपोगाइनस फ्लावर में थैलेमस की पोजीशन कोनिकल हो जाती है, कोनिकल शेप। गाइनोशियम की पोजीशन टिप पे होती है, टिप ऑफ द थैलेमस। And rest of the floral part arises from the base of ovary, arise from base of ovary। आइए इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। This is your thalamus and the shape of the thalamus is conical। The thalamus is conical। गाइनोशियम इसके टिप पे प्रेजेंट होगा। This is called your gynoecium and the rest of the floral part are arises from base of ovary। ये सेपल्स होंगे और ये आपके पास कैलिक्स। तो एक इस तरह का प्लांट जिसमें ओवरी सुपीरियर पोजीशन पे हो, थैलेमस कोनिकल शेप का हो, गाइनोशियम कोनिकल के थैलेमस के टिप पर प्रेजेंट हो, एंड रेस्ट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स आर अराइजेस फ्रॉम द ओवरी। सच टाइप ऑफ द प्लांट इज नोन एज द हाइपोगाइवस फ्लावर, दैट इज कॉल्ड हाइपोगाइनस फ्लावर या सुपीरियर ओवरी प्लांट। You can see in this diagram the ovary is at the superior position, that is why it is called superior ovary plant,
and the position of the thalamus is below, that's why it is called hypogynous flower. Please everyone note it. आगे हम examples को पढ़ेंगे. Now let's take the examples of hypogynous flower. Again these are important. तो हमारे पास एक ट्रिक है. एक प्रोडक्ट है हमारे पास हाइपो. हाइपो इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट चाइना का है. हाइपो चाइना का मस्ट ब्रांड है. दिस इज योर ट्रिक. कोई प्रोडक्ट का नाम है हाइपो, वो चाइना का है, बहुत अच्छा है, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट मस्ट ब्रांड है. रिमेंबर विद मी, प्लीज रिपीट विद मी. हाइपो चाइना का मस्ट ब्रांड है. सो हाइपो स्टैंड फॉर हाइपोगाइनस. China stand for China rose. Must is stand for mustard plant. Sarso belongs to the Brassicaceae family. B stand for brand means brinjal. So the examples of hypogynous flower are China rose, mustard and brinjals. Remember the trips. हाइपो चाइना का मस्ट ब्रांड है. हाइपो मीन्स हाइपोगाइनस, चाइनीज स्टैंड फॉर चाइना रोज, मस्ट मैंने मस्टर्ड, इसको आपको नहीं जोड़ना है. ब्रांड मीन्स ब्रांड. तो हाइपो चाइना का मस्ट ब्रांड है. चाइना रोज, मस्टर्ड एंड द ब्रिंजल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइपोगाइनस फ्लावर. आगे बढ़ते हैं. सेकंड हमारे पास आता है पेरीगाइनस फ्लावर. अगेन आपको इसमें भी 3 चीजें याद रखनी है. थैलेमस, गाइनोशियम, रेस्ट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स. यहाँ पर थैलेमस एक्सटेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ये मिड में प्रेजेंट होगा और यहाँ पर रिम से निकलते हैं. अराइज फ्रॉम रिम. डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. This is your thalamus and the thalamus become extended form. इनकी ये जो margins होती है these are called rim. तो thalamus is extended form. Gynoecium यहाँ से बीच में से arise होगा. It is arises from the center and rest of floral parts arises from rim. These are the androecium. These represent petals and this represents sepals. So in this flower we can clearly see the position of the ovary is neither superior neither inferior, it is in between. Such type of the flower is called half superior and half inferior flower. Very important. Half superior, half inferior plant. Half inferior. So perigynous flower is also called half superior and half inferior flower because the position of the ovary is neither hypo nor epi. It is present in between. So that's why it is called. It may be superior, half superior or half inferior है. Please note it.
आइए इसके एग्जाम्पल समझते हैं। क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं। ट्रिक हमारे पास क्या है इसकी, प्लम्बर को सब जानते हैं, सबके घरों में आता है। प्लम्बर ने एक काम कर दिया, पीच को रोज दिया, पीच को रोज दिया। प्लम्बर ने पीच को रोज दिया। रिपीट, प्लम्बर ने पीच को रोज दिया। दिस इज योर ट्रिक्स टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स ऑफ पेरीगाइनस फ्लावर। प्लम्बर इज स्टैंड फॉर प्लम, पीच इज स्टैंड फॉर पीच, and rose is stand for rose plant. Plum, peach, rose are comes under the perigynous flower या half superior और half inferior, half superior और half inferior. ट्रिक्स अगेन क्या है, प्लम्बर ने पीच को रोज दिया, प्लम, पीच एंड रोज। रिमेंबर वन पॉइंट, these all belongs to the family Rosaceae. Everyone please note it. आइए आगे थर्ड की तरफ मूव करते हैं हम। टाइप्स ऑफ द फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑन थैलेमस। थर्ड हमारे पास क्या होता है, थर्ड होता है एपिगाइनस। एपिगाइनस फ्लावर। एपी का मतलब हमेशा अप से होता है, हाइपर मीन्स, एपी मीन्स ऑलवेज अप। अगर ये अप है तो दूसरा कोई ना कोई क्या रहने वाला होगा, डाउन रहने वाला होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं इन्फीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी प्लांट या इन्फीरियर ओवरी। एक क्वेश्चन। दूसरा इसमें क्या होता है, अगेन रिमेंबर द थ्री थिंग्स। थैलेमस कैसा होगा, आइए इसके एग्जाम्पल समझते हैं अपनी ट्रिक से। ट्रिक क्या है, ट्रिक्स ये है आपकी, एक नाम है हमारे पास एपी, सन, और ये गुआवा बनाना पसंद करता है, कुकिंग गुआवा। चलिए मेरे साथ दोहराइए, एपी सन कुकिंग गुआवा, इट्स द नेम। क्या पसंद है इनको, गुआवा बनाना पसंद है। एपी सन कुकिंग गुआवा। एपी स्टैंड फॉर एपिगाइनस। सन इज स्टैंड फॉर, एस इज स्टैंड फॉर सनफ्लावर। और सनफ्लावर में कुछ कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। इन पार्ट्स को हम बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। तो याद रखना रे फ्लोरेट्स। नेक्स्ट एग्जांपल, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। इसको नहीं जोड़ना है, गुआवा इज स्टैंड फॉर गुआवा। So the tricks to remember this is epi sun cooking guava. Epi stand for epigynous, sun is stand for the sunflower. एक पॉइंट यहीं से आपको याद रखना है, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ये जो इस तरीके से चारों तरफ फ्लावर के अराउंड प्रेजेंट होती है, दीज आर कॉल्ड रे फ्लोरेट्स। कुकिंग को आपको नहीं इंक्लूड करना है। एंड द फोर्थ वन इज नोन एज गुआवा मीन्स गुआवा। दीज कम्स अंडर द एग्जाम्पल्स ऑफ एपिगाइनस। तो आइए हम एक बार रिवीजन करते हैं जो हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल कैरेक्टर फीचर ऑफ ए प्लांट इज नोन एज द मॉर्फोलॉजी। किसी भी फ्लावर में 4 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। सेंटर में गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स। द यूनिट ऑफ द गाइनोशियम इज नोन एज द पिस्टल और कार्पल। द यूनिट ऑफ द एंड्रोशियम इज नोन एज स्टेमन्स एंड द यूनिट ऑफ कोरोला इज नोन एज द पेटल्स एंड द यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल्स।
एक ऐसा फ्लावर जिसमें चारों वल्स प्रेजेंट होते हैं उसको कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है. फ्लावर इन विच 4 वल्स आर प्रेजेंट इज नोन एज द कंप्लीट फ्लावर. अ फ्लावर इन विच any wall is missing is known as the incomplete flower. Bisexual flower, a flower in which both androecium and the gynoecium is present is known as the bisexual flower. Unisexual flower, a flower in which either androecium or the gynoecium is present is called unisexual flower. Unisexual flower can be of two types, staminate flower and pistillate flower. The flower in which only stamens are present known as the staminate flower, and the flower in which only pistils are present is known as the pistillate flower. इसके बाद हमने डिस्कस किया मोनोइशियस प्लांट, मोनोइजिस्टेंट फॉर द सिंगल, एक ऐसा प्लांट जिसपे स्टेमन्स और पिस्टल दोनों की दोनों पाई जाती है उसको हम मोनोइशियस प्लांट बोलते हैं. प्लांट इन विच बोथ एंड्रोशियम एज वेल एज द गायनोशियम इज प्रेजेंट इज नोन एज द मोनोइशियस प्लांट. फॉर एग्जांपल कुकुरबिटा, कैस्टर and coconut. Second one is known as the dioecious plant, a plant in which either androecium or gynoecium is present, it is known as the dioecious plant. For example mulberry, date palm and papaya plant. इसके बाद हमने सिमिट्री की बात की. There are three types of the symmetry. One is known as actinomorphic symmetry. Actinomorphic symmetry is also known as radial symmetry. A.R. रहमान से आपको इसको याद करना है. Actinomorphic and radial symmetry. एक ऐसी सिमिट्री इन विच फ्लावर कैन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय मेनी वर्टिकल प्लेन्स. ट्रिक्स इसकी क्या थी? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग. एक्टिनोमॉर्फिक, ब्रेसिका या मस्टर्ड, चिली एंड दतूरा. सेकेंड वन इज नोन एज द जायगोमॉर्फिक फ्लावर. जायगो जीबी से याद रखना था, मेरे फ़ोन में इतना जीबी नेट आता है. तो जायगोमॉर्फिक एंड बायलेटरल सिमिट्री. द फ्लावर विच कैन डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल पार्ट्स बाय ओनली वन वर्टिकल प्लेन, इट इज नोन एज द जायगोमॉर्फिक फ्लावर. अगेन इसकी ट्रिक क्या थी? पीजी कॉलेज बंद है, पीजी कॉलेज बंद. पी स्टैंड फॉर पी प्लांट, जी स्टैंड फॉर गुलमोहर, सी स्टैंड फॉर कैशिया एंड बन मीन्स बीन. एंड द थर्ड वन इज नोन एज द asymmetric flower, the flower which can not divided into two equal halves by any vertical plane, such flowers are known as the asymmetric flower. कोई ठीक है काना आदमी एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं देख सकता तो हम कैना से याद रखें. कैना इज द नेम ऑफ प्लांट. उसके बाद हमने पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ थैलेमस. देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द फ्लावर. फर्स्ट वन इज नोन एज द हाइपोगाइनस फ्लावर, इट इज आल्सो नोन एज द सुपीरियर ओवरी प्लांट. इसमें क्या होता है? थैलेमस हमारे पास कॉनिकल शेप का, ओवरी इज प्रेजेंट एट द टिप एंड द रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट इज अराइजेस फ्रॉम द बेस. इसकी ट्रिक हमारे पास क्या थी? ट्रिक हमारे पास थी हाइपो, चाइना का मस्ट ब्रांड है. हाइपो मीन्स हाइपोगाइनस, चाइना मीन्स चाइना रोज, मस्ट मैंने मस्टर्ड, ब्रांड मैंने ब्रिंजल. दीज आर द एग्जाम्पल्स. सेकेंड हमने पढ़ा है एपीगाइनस फ्लावर, सॉरी पेरीगाइनस फ्लावर. एक ऐसा फ्लावर जिसको हम हाफ सुपीरियर और हाफ इन्फीरियर फ्लावर भी बोलते हैं. इसमें थैलेमस हमारे पास एक्सटेंडेड शेप का होता है और गाइनोशियम फ्यूज फॉर्म में और सेंटर में मौजूद होती है. एंड रेस्ट ऑफ फ्लोरल पार्ट आर अराइजेस फ्रॉम द रिम. इसकी एक ट्रिक हमारे पास क्या थी? प्लम्बर ने पीच को रोज दिया. प्लम बर ने पीच, पीच मीन्स पीच, रोज मैंने रोज, प्लम पीच रोज, प्लम्बर ने पीच को रोज दिया. एंड ऑल बिलोंग्स टू द फैमिली रोजेसी. एंड द लास्ट वन इज नोन एज द एपीगाइनस फ्लावर, इट इज आल्सो नोन एज द इन्फीरियर ओवरी प्लांट्स. इसमें क्या होता है? ये कर्व हो जाता है थैलेमस, ओवरी बिल्कुल सेंटर में नीचे बेस पे आके फ्यूज हो जाती है. एंड रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट आर अराइजेस फ्रॉम द रिम. इसकी ट्रिक हमारे पास क्या है? एपी सन कुकिंग गुआवा. एपी इज स्टैंड फॉर एपीगाइनस, सन इज स्टैंड फॉर सनफ्लावर. दूसरा एग्जाम्पल्स भी यहीं से याद रखना है, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. एंड द थर्ड वन इज नोन एज द गुआवा. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी.